سب سے پہلے خانہ-پوری، دنیا کا سب سے قدیم عجائب گھر ڈیش شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا، تو اس کا جواب ہے ار۔ بھارت کا قومی دستاویزات کا محافظ خانہ ڈیش میں ہے، تو نئی دلی۔ غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ غلط جوڑی یہاں پہ رمن ہے، جس کا مغربی بنگال کا رقص لکھا ہوا تھا، جبکہ صحیح جواب ہے گھڑوال کا مذہبی تہوار۔ گھڑوال جو ہے اتراکھنڈ میں آتا ہے۔ درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ اطلاع کی تاریخ صفحہ نمبر 15 پہ۔ یہاں بچوں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہی جواب سوال نمبر 3 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے کا جو پہلا سوال ہے تاریخ برائے عوام اصطلاح کی وضاحت کیجیے، یہ دونوں جواب ایک ہی ہیں، تو آئیے دونوں ہم صفحہ نمبر 15 پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے لے کے یہاں تک ضروری ہے تک دوسرے کا پہلا ہے، اور آخر تک تیسرے کا پہلا ہے۔ میں پورا پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں جواب اس میں مکمل ہو جائیں گے۔ اطلاع کی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا متبادل لفظ رائج ہے، یعنی اطلاع کی تاریخ کو عوامی تاریخ بھی کہتے ہیں، اور جیسا میں نے بتایا عملی تاریخ بھی کہتے ہیں اسے۔ زمانے ماضی کے جن واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ماضی کی جن چیزوں کا علم ہمیں تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا استعمال موجودہ دور یعنی آج اور زمانے مستقبل میں کس طرح کیا جائے، اس پر اطلاع کی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے سماجی مسائل کا حل، آج جو ہمارے سامنے سماج میں مسائل ہے اس کا حل، سماجی آفادیت کے فیصلے یعنی سماج میں فائدہ پہنچانے والے فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں ماضی کے واقعات جو ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، یعنی مشعل راہ ایک محاورہ ہے، مطلب وہ ہمیں مدد کرتے ہیں، جس کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے کا پہلا ہو گیا، میں آگے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کور ہو جائے۔ اطلاع کی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں، یعنی صرف تاریخ داں ہی نہیں یا جو ماہر ہے تاریخ کے وہی نہیں، عام لوگ بھی اس میں آرام سے شامل ہو سکتے ہیں۔ عجائب خانے یعنی میوزیم، قدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کی شمولیت بھی اس میں اہم ہوتی ہے۔ سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو، تو جو قدیم مقامات پہ گھومنے کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی اس میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے، اور وہ اپنے گاؤں اور شہر میں موجود قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ سیاح آتے ہیں جس سے ہمارے لیے آمدنی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ جو تاریخ کی وراثت ہے اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس لیے لوگ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ چلیے بچوں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، دستاویزات کا محافظ خانہ جسے انگریزی میں آرکائیوز کہتے ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ اس کا جواب ملے گا۔ یہاں پر دیکھیے یہاں سے لے کے یہاں تک دستاویزات کے محافظ خانے آرکائیوز میں پرانے اور اہم کاغذات، فائلیں، پرانی فلمیں وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ بھارت کا دستاویزات کا قومی محافظ خانہ نئی دلی میں ہے، اور ہر ریاست میں آزاد دستاویزی محافظ خانے موجود ہوتے ہیں۔ ہر ریاست کے اپنے الگ آرکائیوز یا پھر دستاویز کے محافظ خانے ہوتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا پہلا ہم نے کر لیا، اب سوال نمبر 3 کا دوسرا دیکھیے۔ قدیم تاریخی مقامات کے حوالے سے یونیسکو کے اقدامات بیان کیجیے، صفحہ نمبر 17 پہ ہے۔ سوال نمبر 5 کا دوسرا دیکھیے بچوں، یہاں درج ذیل بیانات کی وجوہات میں جو دوسرا ہے، یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات روایات کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ یہ دونوں جواب ایک ہی ہیں، تو آئیے میں دونوں آپ کو صفحہ نمبر 17 پہ کراتا ہوں، تیسرے کا دوسرا اور 5ویں کا دوسرا۔ دیکھیے یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک سلسلوں میں ہی ہے، یہاں تک رہے گا۔ آئندہ نسلوں کی بہبود کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے، تاکہ آئندہ نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری کیا وراثت تھی، ہمارے ملک میں کس طرح کی تاریخی چیزیں، عمارت وغیرہ تھی، یہ سب چیزیں۔ ناپید ہونے والے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنمائی اصول متعین کیے ہیں۔ ناپید کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونے والے، انگریزی میں ایکسٹنکٹ کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ختم ہو جائے گی اگر اس کا دھیان نہ رکھا جائے، اس لیے یونیسکو نے اس کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں۔ ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر عالمی وراثت کے اہل مقامات
रिवायात वगैरह की फहरिस्त शाये की गई है, यानी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है जो तारीखी विरसा है, इसकी फहरिस्त बनाई है यूनेस्को ने। यूनेस्को की आलमी कुदरती विरसे की फहरिस्त में मगरिबी घाट की गारों को 2012 में शामिल किया गया है। जिला सातारा की कास सतह मुर्तफा मगरिबी घाट के सिलसिलों में ही है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तहजीबी विरासती मकामात की फहरिस्त में महाराष्ट्र के मकामात तलाश करके लिखिए, सफ़ा नंबर 18 पे है। महाराष्ट्र में कौन कौन से तहजीबी विरासती मकामात है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भारत में मौजूद आलमी विरसे के मकामात तहजीबी, तो इसके अंदर पूरे भारत के हमें महाराष्ट्र के ही खाली लिखना है, तो मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया है, टिक मार्क किया है। 1983 में अजंता के गार, उसी साल 1983 में एलोरा के गार, नीचे 1987 में घारापुरी जिसे एलिफेंटा के गार कहते हैं, और यहाँ पर 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। इन सबको तहजीबी आलमी विरसे के मकामात महाराष्ट्र में करार दिया गया है यूनेस्को के जरिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है चौथा, दर्ज झैल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। तहजीबी विरसे की दो किस्में होती है, मरई और गैर मरई। मरई का मतलब होता है जिसे अंग्रेजी में टेंजिबल कहते हैं, गैर मरई इनटेंजिबल। तो मरई यानी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मरई हो गए, और गैर मरई मतलब जो महसूस किए जाते हैं। तो इसमें मरई में हमने लिखा है किताब की निस्बत से ही, किताब में से ही लिखा हुआ है ये, कदीम मकामात, मुजस्समे यानी मूर्तियां और तस्वीर। और गैर मरई में आप लिख सकते हैं रिवायती उलूम यानी किसी रिवायत के बारे में इल्म होना, त्यौहार और फनून की पेशकश का तरीका यानी अलग अलग फन को किस तरह से पेश किया जाता है, गाने के जरिए, डांस के जरिए, वो सब चीजें इसमें आती है गैर मरई में। चलिए सवाल नंबर 5, दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला, टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला जरूरी है, सफ़ा नंबर 16 पे। सफ़ा नंबर 16 पे चलते हैं हम। देखिए ये पूरा पैराग्राफ है। टेक्नोलॉजी, ज़रई पैदावार, अशिया की पैदावार और तामीरात, इंजीनियरिंग वगैरह में होने वाली तब्दीलियां और इसके पीछे पोशीदा वजूहात को समझने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला करना होता है। यानी इन सब चीज़ों के पीछे क्या बातें छुपी है, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसको समझने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख समझनी पड़ती है। साइंसी दरियाफ्तें यानी साइंसी खोज, साइंटिफिक इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी का इर्तका, इर्तका मतलब आगाज, ओरिजिन, शुरुआत, एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं। इंसानी इर्तका की पेशरफ्त में पत्थर के औजार बनाने से लेकर ज़रई पैदावार की तरक्की तक इसे समझ में आने वाला साइंस और इस पर मुबनी टेक्नोलॉजी की तरक्की इंतहाई अहम थी। यानी जब इंसान पत्थर के औजार बनाता था तब से लेकर ज़रई पैदावार करने लग गया, तो ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ। साइंस की तरक्की की वजह से पैदावारी अमल में मेकानियत आती गई। मेकानियत मतलब मशीनों का भी इस्तेमाल होने लग गया या मेकानिकी काम होने लग गया। ये क्यों कर हुआ? साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह हमेशा एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं, इस बात को जानने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख को समझना जरूरी है। किस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पे मुनस्सिर है, ये अंग्रेजी में कहेंगे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की तारीख समझना जरूरी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहक मकामात रिवायत की फहरिस्त शाये की जाती है, ये हमने कर लिया है। चलिए अब मुफस्सिल जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला, झैल के मज़ामीन की तहकीक में तारीख का तहकीकी तरीका किस तरह कारआमद साबित होगा, ये बताइए। तो सफ़ा नंबर 15-16 पर है, पहले साइंस, फिर फ़नून और फिर इंतज़ामी मुताल्लात। तो चलो हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 15 पे। देखिए यहाँ से साइंस, साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर और उन दरियाफ्तों की पेश पर्दा या पशे पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए, पशे पर्दा मतलब उनके पीछे की, यानी साइंस की दरियाफ्तें यानी साइंटिफिक इन्वेंशन, जो चीज़ें ईजाद हुई वो, और उसूल साजी का दौर और किस तरह साइंस के उसूल बने, इनकी दरियाफ्तों को अगर समझना है तो इसके पीछे छुपी हुई वजूहात को समझने के सिलसिले के लिए साइंस की तारीख का मुताला करना होता है। मिसल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है,
यानी जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो इजादात करता है। अंग्रेजी में कहते हैं नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कई मरतबा साइंसी दरियाफ्त इंसानी ज़रूरियात की तकमील और तजस्सुस की आसूदगी के लिए की गई कोशिशों से हासिल की जाती है। यानी कि साइंसी दरियाफ़तें जो है वो इंसान की ज़रूरत और उसकी तजस्सुस यानी कि किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश, क्यूरियोसिटी को मुकम्मल करने के लिए की जाती हैं। इसके लिए पहले से मौजूद साइंसी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन दरियाफ़तों के पशे पर्दा वजूहात यानी इसके पीछे की वजूहात और ज़माना समझने के लिए साइंस की तारीख का इल्म सूदमंद होता है यानी फ़ायदेमंद होता है। दूसरा फ़नून था, तो यहीं पे बाजू में लिखा हुआ है मुख्तलिफ शुबह हाय फ़नून में, यानी अलग अलग शुबह हाय फ़नून मतलब कि फ़नून के अलग अलग शुबों में, या आर्ट्स, फील्ड ऑफ आर्ट्स भी कह सकते हैं, में इजहार ज़ात और इसके पशे पर्दा फ़िक्री, जज्बाती और तहजीबी रिवायात की मदद से होने वाले फ़नून का इर्तका समझना ज़रूरी होता है। यानी कैसे ये फ़न शुरू हुए, उसके पीछे कौन सी जज्बाती, कौन सी तहजीबी या कौन सी फ़िक्री रिवायतें थी, ये समझना ज़रूरी होता है। किसी भी फ़न पारे की बारीकियाँ, यानी किसी भी कला की, फ़न पारे का मतलब होता है एक हुनर का, एक आर्ट पीस कह सकते हैं अंग्रेजी में, हुनर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ़न पारे की बारीकियाँ या कोई फ़न की चीज़ बनाई, उसको फ़न पारा कहते हैं, कि बारीकियाँ फ़नकार की जहनियत और मखसूस तर्ज फ़न के इर्तका की तरतीब तहजीबी तारीख के मुताले के ज़रिए जान सकते हैं। और आखिरी था इंतज़ामी उलूम, ज़राए पैदावार और इंसानी क़ुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ आमाल, बाज़ार और ख़रीद व फ़रोख्त के इंतज़ाम के सिलसिले में माजी के निज़ाम को समझना ज़रूरी होता है। मतलब पास्ट के लोगों का किस तरह समाज था, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती है। इस जंजीर में मुख्तलिफ सतहों पर जुड़े लोगों की रिवायती ज़हनियत समझने के लिए इन तमाम का इन्हिसार जिन मुख्तलिफ समाजी और माशी तंजीमों पर होता है, इसकी तारीख जानने से मौजूदा हालात में मुख्तलिफ सतहों पर इंतजामात में सहूलियात पैदा होती है। यानी पास्ट में लोग किस तरह से चीज़ों को तरतीब देते थे, वो चीज़ अगर हम समझेंगे तो माजी हाल में हमें जो है वो उस चीज़ों को आसानी होगी करने के लिए। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा, इत्तला की तारीख और मौजूदा ज़माने के ताल्लुक की वजाहत कीजिए। सफ़ा नंबर 16 पर है। देखिए यहाँ पर इत्तला की तारीख और मौजूदा दौर, ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख का क्या इस्तेमाल है, इत्तला की तारीख से क्या मुराद है। इसका हमें यानी तारीख का हमारे अभी हम तारीख में माजी की बातें पढ़ते हैं, तो माजी का हाल में क्या काम है, ये सवाल हमेशा से रहा है। इस सवाल के जवाब में मस्कूरा बाला सवाल का जवाब भी खुद ब खुद मिल जाता है। माजी की कई बाक़ियात मरई और गैर मरई सूरत में मौजूदा ज़माने में पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि माजी की कई चीज़ें या तो मरई सूरत में यानी कि टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या गैर मरई सूरत जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे रिवायत, त्यौहार वगैरह में मौजूदा ज़माने में पाई जाती हैं। इनके मुतालिक हमारे दिलों में तजस्सुस पैदा होता है, यानी कि इसको जानने की ख्वाहिश पैदा होती है। हमें महसूस होता है कि हम इनकी तारीख जानें, क्योंकि वो हमारे आबा व अजदाद के फ़नून और रिवायात की बाक़ियात होती है। क्योंकि वो हमारे जो आबा व अजदाद है, हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके ये रिवायत और फ़न है। ये हमारा तहजीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। इनकी तारीख की मालूमात हमें अपनी इब्तिदा की तरफ ले जाती हैं। इसलिए इस तहजीबी विरसे को अपने और अगली नस्ल की भलाई के लिए लंबे अरसे तक महफूज करने और इसे परवान चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है। इत्तला की तारीख के ज़रिए मरई और गैर मरई सूरतों में मौजूद तहजीबी विरसे की हिफाजत और नशोनुमा की जाती है। जो भी मरई या गैर मरई सूरत में जो तारीखी विरासत मौजूद है, उसको हिफाजत की जाती है इत्तला की तारीख की मदद से, जिसकी वजह से रोज़गार के कई मौके पैदा होते हैं। मुख्तसरन ये कि तारीख के ज़रिए मौजूदा ज़माने की मुनासिब तफ़हीम मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, और मुस्तकबिल के लिए मशाल राह की हैसियत से इत्तला की तारीख की वजाहत की जा सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, तारीखी माखज़ की हिफाजत के लिए कम अज़ कम 10 तरीके बताइए। और सवाल नंबर 4 है, कुदरती और तहजीबी विरसे की हिफाजती मंसूबे के ज़रिए कौन से मकासद हासिल होते हैं। इन दोनों सवालात के जवाबात किताबों के अंदर काफ़ी बिखरे हुए हैं, पॉइंट बहुत अलग अलग हैं, तो उसे एक जवाब में अरेंज किया है मैंने, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, सवाल था
तारीखी माखज़ की हिफाजत के लिए कम से कम 10 तरीके बताइए, यानी तारीख के जितने भी सोर्स है, जितने भी ज़राए हैं, उनकी कैसे हिफाजत करना है। तो नंबर 1, किलों, यादगारों जैसी तारीखी इमारतों की बाकायदगी से मरम्मत की जानी चाहिए। नंबर 2, इमारतों को नुकसान पहुंचाने और इन पर नाम लिखने से बचाव की तदाबीर की जानी चाहिए, यानी नाम लिखने से बचाने की अलग अलग तदबीर बनानी चाहिए। फिर उसके बाद है तारीखी सिक्कों, हथियारों वगैरह को बहुत संभाल के रखना चाहिए। नंबर 4, तारीखी सिक्कों, हथियारों वगैरह की चोरी से हिफाजत की जानी चाहिए। नंबर 5 है ज़बानी अदब जैसे लोकगीत वगैरह को तहरीरी शक्ल में महफूज किया जाना चाहिए, यानी कोई ज़बानी, कोई तारीख की कोई विरासत है जो लोकगीत वगैरह की शक्ल में मौजूद है। कोई गीत, लोकगीत कहते हैं अंग्रेजी में फोकलोर, यानी कि जो आम सिर्फ बातचीत में ही वो रिवायत कायम होती है, उसको लिखा नहीं जाता, तो इसलिए उसको लिख लेना चाहिए ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए महफूज हो सके। नंबर 6, कदीम किताबों को दीमक वगैरह से महफूज किया जाना चाहिए। नंबर 7, फफूंद से बचाने के लिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि कदीम किताबों को पानी ना लगने पाए। नंबर 8, तारीखी माखज़ों की हिफाजत के लिए तजुर्बाकार माहिरीन से सलाह मशवरा किया जाए। नंबर 9, तारीखी माखज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाए, अलग अलग जो है बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। और नंबर 10, कदीम विरसा होने की वजह से इनकी अहमियत जताकर आवाम के दिलों में इनके लिए मोहब्बत जगाए, ताकि आवाम को पता चले कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क की विरासत है। चलिए आखिरी सवाल है हमारा, कुदरती और तहजीबी विरसे के हिफाजती मंसूबे के जरिए कौन से मकासद हासिल होते हैं? तो जवाब है कुदरती और तहजीबी विरसे के हिफाजती मंसूबे के जरिए दर्ज झैल मकासद हासिल होते हैं। पहला, मंसूबे के तहत विरासती मकाम की असल शक्ल सूरत में तब्दीली किए बगैर तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करना मुमकिन हो जाता है। मतलब जो असल चीज़ है उसकी कोई शक्ल सूरत में तब्दीली नहीं होती और उसकी हिफाजत की जाती है मंसूबे के जरिए। दूसरा, मकामी समाज की साख्त और जहनीत कैसी है, इनके सामने हाल में कौन से मसाइल हैं और मकामी लोगों की तौक़ात का जायज़ा ले सकते हैं, यानी कि उन लोगों का दिमाग कैसा है, उन लोगों की सोच कैसी है, अभी उन लोगों को क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। नंबर 3, ऐसी तदबीरों की मनसूबा बंदी की जाए कि तहजीबी विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए मकामी बाशिंदों के जज्बात को ठेस ना लगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मान लो कहीं पे कोई बहुत कदीम ज़माने का कोई मंदिर है, अब मंदिर जो है वो लोगों के मजहबी जज्बात उससे जुड़े हुए होते हैं, तो आप मंदिर की जब कोई तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहे हैं तो इस तरह से करें ताकि कोई जो लोगों की जो जज्बात है उसको ठेस ना पहुंचे, कोई बेअदबी ना हो, ताकि लोग जो है वो गुस्सा ना करें और आराम से आपका काम जो है वो हो जाए। मनसूबाबंद प्रोजेक्ट के कामों में मकामी लोगों को शामिल भी किया जा सकता है। नंबर 4, मकामी लोगों की रवायती महारतों को तहरीक हासिल हो, ऐसी सनत व हिरफत को तहरीक मिले, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ें बने कि जो लोगों में रिवायती महारतें पैदा करे। इसके लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करना मुमकिन होता है और ये मनसूबाबंदी या प्लानिंग के ज़रिए किया जा सकता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस तमाम सबक के सवालात और जवाबात की निशानदेही और जवाबात को मैंने आपको समझा भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।